جو سب سے اہم خبر ہے وہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے. جب آپ یہ ویلاگ سن رہے ہیں یا میں صبح کے وقت ریکارڈ کر رہا ہوں, عمران خان صاحب کے 2 کیسز جن کے اندر وہ جیل کے اندر بند ہے, ان دونوں کیسز کی اپیلیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگنے جا رہی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بڑے لمبے عرصے سے, یعنی سال سے زیادہ ہو گیا, عمران خان صاحب اور ان کے وکلا کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگیں. عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کیسز بالکل ٹھہرنے کے قابل ہی نہیں ہے, اور اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں کسی بھی جگہ پہ یہ کیسز جاتے ہیں تو یہ اڑ جائیں گے. عمران خان صاحب ان کیسز میں رہائی پا لیں گے. اب یہ دونوں کیسز لگ گئے ہیں اور ایک ہی دن لگ گئے ہیں, اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2 دن پہلے عمران خان صاحب کی 9 کیسز میں ضمانتیں منظور ہوئی ہیں. 7 یا 8 کیسز تھے غالباً, ایک بشرا بی بی کا بھی تھا. تو عمران خان صاحب کی ایک اور عدالت سے جو لوور کورٹ ہے, وہاں پہ 9 مختلف کیسز کے اندر یا 8 مختلف کیسز کے اندر ضمانتیں منظور ہوئی ہیں, جس میں 9 مئی کا بھی تھا, اس کے اندر کیس تھا آزادی مارچ والا بھی, اس کے اندر دیگر کچھ اور کیسز تھے. تو ڈیفرنٹ ٹائم کے حوالے سے عمران خان صاحب کے, اور جعلی رسیدیں بنانے کا ایک کیس تھا. تو یہ سارے کیسز میں عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی پہلے ضمانتیں ہو چکی ہیں. اب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے 2 کیسز, جن میں ایک کیس, یہ الگ الگ عدالتیں, ایک کیس صبح 9 بجے ابھی لگا ہوا ہے جسٹس خادم حسین سومرو صاحب کے سامنے, توشہ خانہ والے کیس کی اپیل, اور اسی کیس میں عمران خان صاحب گرفتار ہیں. اور دوسرا کیس جس میں وہ گرفتار ہیں یا قید کاٹ رہے ہیں وہ القادر کیس کی اپیل ہے, اور یہ دونوں لگے ہوئے ہیں. اس میں جو ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان, یہ ڈویژن بینچ ہے جو یہ کیس سنے گا. تو ایک کیس لگ رہا ہے 9 بجے اور ایک کیس لگ رہا ہے 11:30 بجے. اگر ان دونوں میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب قیدی نہیں رہیں گے, پھر وہ آزاد ہو جائیں گے, وہ باہر آ جائیں گے. اور کیا ان کی ضمانت ہو جائے گی ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ یہ ججز کنٹرول ہوتے ہیں کہیں اور سے. اگر میں انصاف اور قانون کی بات کروں تو عمران خان صاحب کی آج ہی ضمانتیں ہو جانی چاہیے. آج نہیں ہو جائیں تو 1 ہفتے کے اندر اندر ان کی ضمانتیں ہو جانی چاہیے, اور انہیں پھر اپنے گھر چلے جانا چاہیے آزاد ہو کر. پھر وہ اپنا علاج کروائیں, اپنی پالیٹکس کریں. لیکن یہاں جو دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ عدالتیں کنٹرول میں ہیں ایجنسیوں کے, اور ایجنسیاں جو فیصلہ کریں گی اس کے مطابق ہی چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میں. اگر انصاف اور قانون کے مطابق ہوں تو یہ کیس لگتے ہی بہت پہلے عمران خان صاحب رہا ہو جاتے. اب امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ کسی دن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہوش آئے اور وہ یہ گند مارنا بند کر دے اور ججوں کے اوپر دباؤ ڈالنا بند کر دے, تو پھر میرٹ کے اوپر عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے. اور اگر ان 2 کیسز میں عمران خان صاحب کی فرض کریں آپ ضمانت ہو جاتی ہے یا انہیں رہا کر دیا جاتا ہے, تو پھر کسی اور کیس میں عمران خان صاحب کو اندر رکھا جا سکتا ہے. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ, وہ کتنا دباؤ محسوس کر رہی ہے. دیکھیں 3 طرح کے دباؤ ہے اسٹیبلشمنٹ پہ. ایک بات تو میں آپ کو کلیئر کر دوں, جس وقت عمران خان صاحب کی یہ آنکھ کا مسئلہ اٹھا تھا نا, تو اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بہت خوف پھیل گیا تھا, وہ بہت پریشان تھے, اور بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے احکامات بھی جاری کیے گئے تھے. انہیں لگتا تھا کہ پاکستان اچانک بنگلہ دیش بن جائے گا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جب انہوں نے رابطہ کیا تو تحریک انصاف کو بیوقوف بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب کی فیملی بھی اب کہہ رہی ہے کہ انہیں چکر دیا گیا ہے. حالانکہ وہ شفقت ایوان صاحب جو گرفتار ہو گئے تھے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شریف لوگ تھے, بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباد وغیرہ, تو ان لوگوں کو جو ہے وہ چکر دے دیا محسن نقوی وغیرہ نے, اور پھر ٹائم بائے کر لیا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر یہ کوئی تحریک کھڑی نہیں کر پائے, اور وہ ایک مومنٹم جو بن سکتا تھا احتجاج کا, وہ کچھ بھی نہیں ہوا پاکستان میں, تو اس کے بعد پھر انہوں نے چیزیں نارملائز کر دی. اتنی نارملائز کر دی کہ بڑے آرام سے ایک دن رات کو عمران خان صاحب کو اسپتال لے کر آئے, لا کر عمران خان صاحب کا جو آنکھ کا ٹریٹمنٹ کروایا, ان کے باقی ٹیسٹ کیے اور وہاں سے لے کر چلے گئے. اب دباؤ ایک تو پبلک کا ہے کہ کسی وقت بھی پبلک اگر کھڑی ہو جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک دباؤ رہے گا, اور دباؤ یہ بھی ہے کہ عوام میں اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں یا پاکستان کی فوج میں بطور ادارہ عوام کے ساتھ ایک دوری پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے, اور وہ جو ایک تعلق تھا وہ کمزور پڑ رہا ہے. تو ایک تو یہ بہت دباؤ ہے. دوسرا, پاکستان چل ہی نہیں رہا, اس بات کا بڑا دباؤ ہے. پھر باہر سے بھی پاکستان پہ لگاتار دباؤ آ رہا ہے. یہاں برطانیہ کے اندر 5-6 جو اراکین ہیں ان کی پارلیمان کے اندر ان کی یہ مسئلہ اٹھایا گیا, اور وہاں ہاؤس کے اندر اس کے اوپر تقاریر ہوئی, باقاعدہ ان کے منسٹر نے بات کی, باقی لوگوں نے بات کی, اور انہوں نے کہا پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں, بلکہ جرنیلوں کے اوپر پابندیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ ہم اس کے باوجود ٹریڈ کرتے ہیں,
पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे देते हैं, तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, इसके बाद इन सारी चीजों पे नुक्ताचीनी की गई और पाकिस्तान पे बहुत तनकीद की गई। और वहां पे ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ, ये भी आगे चलेगा, आप देखते रहेंगे। बरतानिया से आवाज उठ रही है, यूरोपीय यूनियन से आवाज उठ रही है, अमेरिका के अंदर आवाजें उठ रही हैं, लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं, जब तक डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर से काम है, और तब तक आसिम मुनीर साहब के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद मेरी बात याद रखिएगा कि यूरोपीय यूनियन हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो, इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें हो, ये सारे भरे बैठे हैं जो कुछ पाकिस्तान के अंदर किया गया है। उसके बाद बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इनके ऊपर आएगा। बहरहाल इमरान खान साहब फिलहाल तो गिरफ्तार है और ये एक अच्छी खबर है, उनके केसेस लग गए। देखते हैं इन केसेस के अंदर क्या होता है। इमरान खान को कत्ल करने की जितनी कोशिशें की गई, उन पे मुराद सईद ने एक तफसीली बयान जारी किया और ये बड़ी अजीब चीज है जो उन्होंने बताया। तशवीशनाक सूरत हाल उन्होंने कहा जी जन्म ले रही है और इमरान खान साहब इस वक्त रियासत की तहवील में है, जहां मुसलसल उनकी जिंदगी से खेला जा रहा है। आखिर किस चीज को छुपाया जा रहा है? उनका कंट्रोल्ड चेकअप किया जाता है, कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है, कंट्रोल्ड मीडिया है, जिससे जिंदगी को खतरा है, जिनकी वजह से वो इस नहज पर पहुंचे हैं, उन्हीं की बात पर यकीन कैसे किया जा सकता? उन्होंने कहा जी इससे कबल इमरान खान पर वजीराबाद में कातलाना हमला करवाया गया, इनको गोलियां लगी, अल्लाह ने उनकी जिंदगी की हिफाजत की, लेकिन उस वक्त भी बयानिया बनाए गए। लम्हों में आईएसआई ने मीडिया को वीडियो बयानात भिजवाना शुरू कर दिए फटाफट। वो याद है आपको, थाने के अंदर से वीडियो आना शुरू हो गई थी। मैं उस वक्त वजीर आला पंजाब को देख रहा था, परवेज इलाही उस वक्त वजीर आला पंजाब थे और आईजीबी वहां पे मौजूद थे और उनके पास सवाल का जवाब नहीं था कि ये वीडियोस आईएसआई कैसे जारी करवा रही है। यानी पूरा निजाम उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। फिर फौजी क़यादत के कहने पर आईएसआई ने एक अफगान को इमरान खान साहब को मारने का टास्क दिया था। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस साजिश का पर्दाफाश किया तो आईएसआई ने इस्लामाबाद के सेक्टर ने प्रेस क्लब में एक अफगानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा दी और शाम को प्राइम टाइम टीवी चैनल पे प्रोग्राम में बयानिए के लिए भी भिजवा दिया। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया था, मगर ये जानते थे कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। इस तरह वो बंदा भी सामने आ गया। फिर स्वाबी में हेलीकॉप्टर गिराने का प्लान भी एक्सपोज हो गया, जिसके लिए डबल एजेंट हायर किया गया था, जो बाद में मारा गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर में गलत फ्यूल भरवा दिया गया इमरान खान साहब के, ताकि हेलीकॉप्टर गिर जाए और इमरान खान साहब उस वाकये में मारे जाएं, और रिपोर्ट आज तक उसकी सामने नहीं आ सकी। 18 मार्च को डेथ ट्रैप बिछाया गया इमरान खान को मारने के लिए। जब वो भी नाकाम हो गया तो पुलिस अफसर को गालियां दी गई कि इमरान खान कैसे बचकर निकल गया। उसके अलावा कई कोशिश। नादरीन, पहली खबर तो ये ले लें कि इमरान खान साहब के भांजे को अदालत में पेश किया गया। 5 दिन का रिमांड दिया गया था शेरशाह का। उन्हें अदालत में पेश किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आए हुए थे बड़ी तादाद में, उन्होंने नारेबाजी वहां पे की है और उसका रीजन ये है कि ये ऐलान किया गया था पार्टी की जानिब से कि इमरान खान की फैमिली से इजहार यकजहती किया जाएगा, जिस किस्म का उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा। तो अब वहां पे आके जो पुलिस है वो ये बताती है कि इमरान खान के भांजे से हमने डंडा बरामद कर लिया है। यानी 2.5 साल गुजर गए एक मुकदमे को, एक मामले को, और 2.5 साल के बाद अब डंडा बरामद कर लिया है। यानी वो डंडा ऐसा लगता है इन्होंने किसी म्यूजियम में छुपा के रख दिया था। इमरान खान के भांजे ने जब उस डंडे के साथ पूरा एक युद्ध लड़ा था, पूरी एक जंग लड़ी थी, तो वो डंडा ला के उसने किसी म्यूजियम में छुपा दिया था और रख दिया था, वहां से उसे बरामद कर लिया गया। हैरत होती है मुझे इनके ऊपर कि 2.5 साल बाद कौन सा डंडा बरामद हो रहा है और किधर से डंडा बरामद हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है। मुझे इन्होंने 1 साल के बाद पकड़ा। मैं वहां कवरेज के लिए गया हुआ था एक जगह पे। मुझे 2024 में इन्होंने गिरफ्तार किया और 2023 के किसी मुकदमे के अंदर मेरे से भी इन्होंने एक डंडा बरामद कर दिया और मुझे पता ही नहीं है। और वहां जाके पुलिस बता रही है जज को कि डंडा बरामद कर लिया। मैंने कहा जी मैं तो कहीं गया ही नहीं, मेरे से तो किसी ने बात ही नहीं की, मैं तो वहां सोया पड़ा था, मेरे से किसने डंडा बरामद कर लिया और कहा मैंने इनको डंडा दिया? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। बहरहाल ये अब इमरान खान के भांजे से डंडा बरामद कर लिया। उसके बाद वो कहते हैं जी कि हमने फोन के अंदर जी वो बरामद करने हैं इनसे जो सोशल मीडिया के इनके अकाउंट्स हैं और बाकी चीजें, और फिर हमने कोई मास्क है जो आंसू गैस वाला, वो भी हमने इनसे बरामद करदा है। अब 2.5 साल के बाद चीजें बरामद हो रही हैं। फिटे मुंह ऐसी तड़ी तफ्तीश का, हैरत होती है मुझे। बहरहाल अदालत एक लेवल तक ही जा सकती है। अदालत ने जुडिशल कर दिया इमरान खान के भांजे को, शेरशाह को। अब दूसरे भांजे को पेश किया जाएगा अदालत में, वो तो वैसे डिस्चार्ज ही होना चाहिए। शेरशाह के मामले में तो ये है कि चले एहतजाज वाली जगह पे मौजूद था, थोड़ा सा लिंगर ऑन हो जाए, लेकिन ये भी छूट जाएगा, बेगुनाह आदमी है। लेकिन जो शारेज है वो तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, वो यहां था ही नहीं। वो तो यहां से कई 100 मील दूर वो उधर चित्राल में था अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ।
उसे तो वहां पता चला कि इमरान खान के साथ क्या हुआ, क्या एहतजाज हुआ और किस तरह हुआ सारा कुछ, और वो उन दिनों में वहां पे मौजूद रहा, उसका रिकॉर्ड और सारे सबूत भी हैं और वो उनकी फैमिली ने पेश भी किए हैं। बहरहाल उनका तो डिस्चार्ज होना फौरी तौर पे बनता है। अब अदालत ने जुडिशल कर दिया है और जुडिशल करने के बाद आप जमानत के लिए अप्लाई करते हैं, तो अब जमानत अप्लाई की जाएगी शेरशाह की। उम्मीद है कि जमानत भी हो जाएगी। लेकिन देखें, जिस केस में डंडे अभी तक 2.5 साल के बाद बरामद हो रहे हैं, उस केस में सीसीटीवी फुटेज आज तक बरामद नहीं हो सकी। ये कंटोनमेंट का इलाका है, ये कोर कमांडर हाउस था, कोई नॉर्मल जगह नहीं है। यहाँ पे जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, एंट्रेंस पे भी लगे हुए हैं, हर तरफ लगे हुए हैं, बल्कि कंटोनमेंट में लगे हुए हैं, वहां तक हर जगह की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो है वो अभी तक गायब कर दी गई है। हर चीज मिल रही है, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही। ये जनाब इनकी सूरत हाल है। अलीमा खानम साहिबा ने वहां पे मीडिया से बातचीत की। वैसे बड़ी हिम्मत है, बड़ा हौसला है अलीमा खान साहिबा का, क्योंकि जब बेटे आपके गिरफ्तार हो जाए तो तकलीफ बहुत होती है और माओ का दिल वैसे भी आपको पता है बहुत नरम होता है। तो अलीमा खान ने कहा कि ये डरे हुए हैं, ये दबाव डाल रहे हैं कि इमरान खान माफी मांगे। इमरान खान क्यों माफी मांगे? ये समझते हैं कि लोग ऐसे डर जाएंगे, मगर ये खुद अंदर से डरे हुए हैं। फिर अलीमा खान साहिबा ने एक और बात की, और वो बात उन्होंने कही एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ही। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डरती है। एस्टेब्लिशमेंट में जरूरत नहीं है कि जाकर इमरान खान से मुलाकात करे। एस्टेब्लिशमेंट में अगर जरूरत होती तो वीलॉगर से मुलाकात की खबरें ना चलवाती, बल्कि इमरान खान से मिलकर दिखाती। लेकिन वो इमरान खान से मिल नहीं पा रहे। ये इमरान खान साहब की बहनें जो है बड़ी अग्रेसिवली आई हैं, और एक जो इमरान खान साहब का भांजा है वो तो जुडिशियल हो गया। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि उसको बेल मिल जाएगी। दूसरा भांजा जो है वो कल या तो जुडिशियल हो जाएगा या उसको डिस्चार्ज किया जाएगा, उसको पेश किया जाएगा जब अदालत में। तो ये शेरशाह वाला मामला था, मैंने आपके सामने रख दिया। एक नादरीन जो मसला एक फंसा हुआ है ना, जहां पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की भी गिच्ची फंसी हुई है, वो मामला आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला। इस वक्त खेल दोबारा से शरीफ खानदान के हाथ में। देखिए ना, एक्सटेंशन की जो अप्रूवल है वो देनी है नवाज शरीफ ने, अमली तौर पे वो करना है शहबाज शरीफ और उसकी कैबिनेट ने, और मरियम नवाज बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रही। तो ये सारे इकट्ठे हो गए थे मरी में, और दावा ये किया गया मुख्तलिफ सोर्सेज से कि वहां पे ये तसलसल जारी रखने का फैसला किया गया। ऐलान कर दिया जाएगा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत यहीं से आगे कंटिन्यू करेगी और वो 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। अब खेल जो है वो शरीफ खानदान के हाथ में। ये चाहे तो एक नया आर्मी चीफ ला सकते हैं, ये चाहे तो मौजूदा आर्मी चीफ को कंटिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो 5 साल के लिए आएगा, जो आर्मी एक्ट में इन्होंने तरमीम कर दी है। अब मौजूदा आर्मी चीफ को 5 साल देने या नहीं देने, इसका इख्तियार भी इस वक्त शरीफ खानदान के पास है। तो शरीफ खानदान क्या मांग रहा है, ये है सबसे बड़ी खबर। अब जो खबर मैं आपको दे रहा हूं, या जो मेरा तज्जिया भी है, और कुछ सोर्सेज भी ये क्लेम करते हैं, मैंने 1-2 लोगों से और भी बात की, वो ये कहते हैं कि शरीफ खानदान इसके बदले में इमरान खान साहब की एलिमिनेशन मांगेगा, और वो एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल रहा है कि हमें इमरान खान से छुटकारा दिला दें आप। देखें, जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है वो शरीफ खानदान के हाथ में है, लेकिन इमरान खान साहब की जेल, उनकी सियासत और उनके मामलात, बल्कि उनकी जिंदगी इस वक्त जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। अब शरीफ खानदान, ये पहले भी आपको रिपोर्ट हो चुका है और बड़े सीनियर सहाफी ये रिपोर्ट कर चुके हैं और ये बातें बाहर आ चुकी हैं कि नवाज शरीफ साहब माजी में कह चुके हैं कि इमरान खान को फारिग कर दो, फारिग कर दो। ये बाकायदा रिपोर्ट किया जा चुका है पाकिस्तान की मीडिया पे। अब मामला ये है कि शरीफ खानदान तो ये चाहता है, और मरियम नवाज ने, यानी सैलाब आया हुआ है, पीछे सैलाब का पानी बह रहा है, रावी के किनारे खड़े होकर इनके दिमाग में इमरान खान इतना सवार है कि वहां खड़े होकर भी मरियम नवाज ने कहा मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन फैसला करना पड़ेगा। अब ये वो फैसला है जो एस्टेब्लिशमेंट को शरीफ खानदान की जानिब से बताया गया कि जनाब एक्सटेंशन चाहिए, देते हैं, हमारा काम करें, और वो इमरान खान से छुटकारा चाहते हैं। ये बात पूरा पाकिस्तान जानता है, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं नई बात कर रहा हूं। शरीफ खानदान का बस चले तो इमरान खान साहब सुबह का सूरज ना देखे, लेकिन उनका बस नहीं चलता, और एस्टेब्लिशमेंट का भी बस नहीं चलता, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। लेकिन शरीफ खानदान इतना जालिम है कि वो बड़े से बड़ा कदम उठा सकता है, क्योंकि कीमत तो एस्टेब्लिशमेंट को चुकानी पड़ेगी। ये शरीफ खानदान जानता है, लेकिन हकीकत मैंने आपके सामने रखी है कि ये जो सौदेबाजी है ये इस जगह पे पहुंची है कि हम एक्सटेंशन देते हैं और तुम इमरान खान से हमें छुटकारा दो। ये अभी मामला यहां पे है, आगे क्या होता है इसके बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे। लेकिन एक्सटेंशन इतनी प्यारी चीज है कि उसके लिए कोई कुछ भी कर सकता है। बहरहाल
یہ نفرت جو ہے مریم نواز صاحبہ نے سیلاب کے پانی کے سامنے کھڑے ہو کر پھیلائی ہے. سیلاب کی صورتحال کیا ہے؟ یہ پہلے آپ نے ایک سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگا, بڑا کمال سٹیٹمنٹ تھا بلاول کا, جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, یاد ہے آپ کو؟ ابھی اسی طرح کا ایک سٹیٹمنٹ مریم نواز سے منسوب ہو گیا کہ جناب پانی اس لیے آیا کہ بارش کی وجہ سے جو رینز ہوئی ہیں, بھئی بارش کو انگریزی میں رین کہتے ہیں, یہ جو رینز ہوئی ہیں یہ لوگ ایکچولی بکھلائے ہوئے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی اور ٹک ٹاک بنانے کے لیے سارے کے سارے نکل پڑے ہیں. اچھا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں یہ عوام کو تنہا چھوڑ دیں گے اور جو وسائل تھوڑے بہت موجود ہیں عوام کے لیے یہ انہیں اپنے ٹک ٹاکس کے لیے استعمال کریں گے. وہ مناظر اب آپ کو دکھائی دے رہا ہے, یعنی یہ کشتیاں چلانا شروع ہو گئے ہیں. میں نے آپ کو تھوڑے دن پہلے کہا تھا, میں ویڈیو باقاعدہ آپ کو ثبوت دکھا دوں گا, ایک دو دن ٹھہر جائیں ذرا ساری چیزیں مکمل ہونے جائیں, پھر میں آپ کو دکھاؤں گا انہوں نے کیا 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 اور میں نے کیا کہا تھا. اب جناب یہ کشتیاں چلا رہے ہیں, مریم نواز راوی میں کشتی رانی کر رہی ہیں, سیر کر رہی ہیں, ان کے ساتھ 2-4 کشتیاں ویسے ہی چل رہی ہیں, اور یہ کشتیاں ریسکیو کرنے کے لیے بھیجنی ہے عوام کو.